एक एक नंबर ते कर दे या बंद ही कर दे। धन वाहिगुरु। जिस प्यारे स्यो ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। अमै दृश्य शुभ करे हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै, गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख तोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। जुगो जुग अटल। चवर छतर तखत दे मालिक, दो जहान दे वाली वालिए कुलालम शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी मुबारक निगी गोद अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। चल रहे हफ्तावारी दे विशेष समागमां दे विच आप सारियां संगतां जिथे सतगुरु दी गोद विच हाजरी भरदे हो, उत्थे मेरे तो पहला गुरु की प्यारी संगत ने, जिथे सत्कारयोग भाई साहब उन्होंने गुरबाणी का कीर्तन किया, उत्थे ही संगतां ने भी गुरबाणी का कीर्तन करके हाजरी लवाई। सतगुरु महाराज ने अपने सिखां नूं, अपने बच्चों नूं, धीआं पुत्रां नूं एक गल आखी सी कि मेरी शरण विच आउणा है, आके करना की है। सब तो पहला कारज है सिख दा गुरु नूं नमस्कार करनी, दूसरा कारज है गुरु दी संगत करनी, तीसरा कारज है बाणी पढ़नी, कथा कीर्तन करना, सुनना। अज आपां धन गुरु अंगद देव महाराज जी दा ज्योति जोत दिवस नूं मुख रखदे हां, जो अज रात दे समागम उलीके गए। जितना कि मैनूं समा मिलिया है, मैं आप जी दे नाल धन गुरु अंगद साहब महाराज दे जीवन दे उत्ते एक पंछी झात मारन दा यतन करांगे। आओ जितने शरीर गुरु दरबार अंदर और लाइव माध्यम राही पूरे बैंकॉक दे अंदर, पूरे शहर दे अंदर आपो अपने घरां दे विच बैठ के सतगुरु दी बाणी नूं सुन रहे हो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं झुकाओ सीस, गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तोड़ी फतेह दस रही है, तुसी हाजरी नहीं लवाई। अपनी फतेह बुलंद आवाज च लगाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गल याद रखियो, जदों बाबा राम राय गुरु हरराय साहब महाराज ने औरंगजेब बादशाह को भेजिया सी ना, ते औरंगजेब बादशाह नूं उत्थे आसा की वार दे विचों सवाल पूछा गया सी बाबा राम राय जी नूं। इहदा मतलब सी उन्हां दे मंत्रियां नूं, संतरियां नूं, सब नूं पता सी कि आसा की वार बाणी उचारण कीती हुई है सतगुरु ने, उहदे विच पौड़ियां श्लोक ने। उन्होंने सवाल ही उत्थों कीता सी
ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1504 ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਵਿੱਤ ਵਰਤਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਨ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਗਾਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਨੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
कई बार तुसी देखना हिंदू वीर अपनी जुबान तो जेड़े अकिरत घन नहीं है वो कहंदे ने जे अज असी दुनिया दे विच सिर चुक के जी रहे हैं वो सिखां दे कारण। जे सिख कौम ना हुंदी ते अज सानू इत्थे जिउण दा कोई हक नहीं सी। सिखां ने सानू राज दवाया, सिखां ने सानू जिउण जोगा कीता। वो अपनियां धीआं नू एक गल कहंदे सी कि धीए जिथे भी तेनू कोई परेशानी नजर आवे, जदों तेनू पग वाला सरदार नजर आ जाए तू समझ ली मैं सेफ हाँ, हुण मैनू किसी गल की चिंता नहीं है। भाई जोध दे जीवन तो प्रभावित होए उत्थे ही एक भाई शिया है जिहड़ा किरती मजदूर है, अपनी मजदूरी करके घर का गुजारा करता है। हुण तुसीं देखना अज ते बड़ा शहर हो गया, हर तरह दियां सहूलतां हो गईयां, गड्डियां मोटर कारां सारियां सहूलतां उत्थे अजकल तो होम डिलीवरी होने लग गई ना, किसी भी चीज़ नूं मंगाना किते जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, घरे ही आ जांदियां। उदों नगरां दे विच इक्को ही दुकान हुंदी सी जिथों सब्जी भी मिलनी, जिवें आपां मॉल कह लैंदे आ, उतों हरेक चीज़ उस ही जगह तो मिलनी। क्योंकि भाई लैणा जी सुदागर भी शाहूकार भी ने, एक हट्टी भी चलाउंदे ने। इन्हां दे कोल भाई सियां जी ने रोज़ आना, ते जिहड़ा रोज़ गाहक आउंदा होवे ना, कस्टमर आंदा होवे ते उहदे बारे पता हुंदा है। एक दिन भाई सियां जी 3-4 दिन बाद आए। जदों 3-4 दिन बाद आए ते भाई लैणा जी ने पूछा कि किते बाहर गए हुए सी, किते बाहर गए हुए सी? कहन लगे नहीं। फिर कहन लगे समान लैन नहीं आए, किवें घर दा गुजारा चलिया? वो कहन लगे दिहाड़ी नहीं लगी, किते काम नहीं मिलिया जिदे करके मैं आया ही नहीं समान लैन। जे किते दिहाड़ी लगदी पैसे मिलते तो समान लैन आउंदा। वो कहन लगे फिर गुजारा किवें कीता? कहन लगे जो घर दे विच हैगा सी असीं उहदे नाल ही अपना गुजारा कर लिया। भाई लैणा जी नूं जदों उन्होंने जिहड़े दिन दिहाड़ी लगी वो कुछ पैसे दिते। भाई लैणा जी पुछदे कौन कौन है तुहाडे घर दे विच? कहन लगा मैं ते मेरी धर्म पत्नी ते एक बच्ची है मेरी। कहन लगा 3 जाने हो ते इन्ने के पैसिਆਂ नाल कोई बहुता समान तां आउणा नहीं ते गुजारा किवें होएगा? भाई लैणा जी ने 2 मुट्ठां वध आटे दियां पा दित्तियां, थोड़ी जी दाल वध पा दित्ती, थोड़ा जिहा घ्यो वध पा दिता, जो सानू इतिहास विच मिलदा है। जदों भाई शिए नूं पता लग्या कि सौदा थोड़ा ज्यादा है, उन्होंने कहा आ की कीता तुसीं? वो कहन लगा मैं अपनी खुशी दे नाल दिता है। कहन लगा ना, मैनू सहान चाहिदा है, मैनू मदद दी लोड़ है। ठीक है मेरा समा औखा है पर मैं मदद तेरे को नहीं लैनी। इदां दी मदद अज तुसीं कर रहे हो, कल नूं मैं फिर किसी होर दी उत्ते आस ला के बह जांगा। कहन लगे मैनू सहान चाहिदा है, आसरा चाहिदा है अपने सतगुरु दा, किसी बंदे दी मुताजी नहीं चाहिदी। कहन लगे जिन्ना मेरे पैसिਆਂ दा राशन बनदा है तू मैनू ओना ही दे दे, असी अपना गुजारा कर लवांगे। भाई लैणा जी बड़े प्रभावित होए, इन्ना ईमानदार, इन्ना सबर संतोख वाला है। अज देखांगा इहदे घर दे विच लगदा पक्का कलेश होएगा। पता हुंदा ही है कि जे घर दे विच घट होवे ना, कई बार घरां दे विच माड़ी माड़ी गल ते कलेश हो जाना। जिन्ना धीआं भैणां नूं सबर संतोख हुंदा है ना, वो थोड़े विच भी गुजारा करना जानदियां ने। ते कईयां दे कोल इन्ना करोड़ा रुपया है ते फिर भी घर दे विच 4 जी कट्ठे रह के नहीं राजी। वो कहन लगे लग रहना है, कट्ठे नहीं असीं रह सकदे। इत्थों पता लगदा है कि बहुता होण दे बावजूद भी सबर संतोख नहीं। भाई सियां जी कहन लगे मैं इन्हां दे घर जावांगा, देखांगा अज कलेश तां पक्का होएगा, झगड़ा होएगा मियां बीबी च, थोड़े दे नाल गुजारा कित्थों होना है। वो मगरों देख रहा घर दे बाहर, भाई सियां घर गया, प्रशादा तैयार होया, घर वाली ने प्रशादा तैयार किया, दाल बनाई, उन्होंने किसी भांडे दे विच पा के अजे बैठण ही लगे ने, घर दा दरवाजा खड़किया है। जदों घर दा दरवाजा खड़किया ना, किसी ने आवाज दी कि भाई सियां जी घरे ही हो? कहन लगे जी हाँ मैं घरे ही हाँ। कहन लगे ये गुरु नानक दे सिख दा घर है? अमान वाली गल सुनियो ध्यान नाल, ये गुरु नानक दे सिख दा घर है?
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। मैं किन्ने भागा वाला वा, मैनू दुनिया गुरु नानक दा सिख करके जानती है। मैं किन्ने वड्डे भागा वाला है, मैनू गुरु नानक दा सिख करके जानते है। भाई सिंह जी कह लगे, साधु जी लंघ आओ। कह लगे, भाई सिंह जी भुख बड़ी लगी है, प्रशादा बनया है? कह लगे, हाँ जी बधिया है। कोई विछाया कपड़ा, उन्होंने बिठाया, प्रशादा छकाया, 2 फुलके वो साधु छक गया। वो फकीर ने 2 फुलके छक ले, थोड़ी जी दाल छक ली। हुण बाहर खड़िया वो दुकानदार लुक के वेखदा पिया है। कहन लगा, हुण तां पक्का कलेश होएगा ही होएगा। पहला 3 फुलके सी, समझदा सी एक एक फुलका तिन्ने जाने छक लैणगे। हुण ते फुलका भी एक रह गया है, दाल भी थोड़ी जी रह गई है। हुण तां कलेश होएगा ही होएगा। हुण जदों साधु चल गया है ते घर वाली कह लगी, सिर दिया साइयां, तुसी बाहर लोकां कोल जाके मजदूरी करनी है ते मैनू पता है जेड़े काम लेंदे ना वो निंबू वांगू नचोड़ दिंदे है। जेड़े किसी नौकर को काम लेंदे है ना ते उन्हां नूं काम प्यारा हुंदा है, चम नहीं प्यारा, वो निंबू वांगू नचोड़ दिंदे है। जे उन्हें तुहानूं दिहाड़ी देनी है ना तो 4 गुणा काम लेंदे है, जे तां जाके दिहाड़ी दिंदा, नहीं तो मालक अपने कोल थोड़ा कुछ दे सकता है। जे बंदे नौकर रखे है ना वो उन्होंने आपां वध कमा के देवांगे तां दिंदा है। कहन लगे, मैनू पता है पानी वांगू नचोड़ दिंदे ने, निंबू वांगू। कहन लगे, तुसी छक लो, तुसी कल दिहाड़ी ते भी जाना है। कहन लगा, ना भागा वाली है, ऐदा कर तू भी अद्धा प्रशादा छक लै, अद्धा अपनी धी नूं दे दे। कहन लगी, ना मैं ते गवांढण घरों लस्सी छक आई है। हस के भाई सिया कहन लगा, मैनू पता है तू कुछ नहीं छकिया। तिन्ना जाणियां ने एक रोटी दे 3 हिस्से किते, रल के छक ले। भाई लैणा जी को रिहा ना गया, अंदर चला गया। कहन लगा, भाई सिए, जिस बाबे नानक दा तू जिक्र कर रहा है उन्हें तेनू इन्ना सबर संतोख दिता है, उस सिख दे जीवन तो इन्ना प्रभावित होए। इस साल जदों जथे नूं माता दे दर्शना वास्ते गए ना, देवी दे दर्शना वास्ते, करतारपुर खडूर साहब तो तुसी देख लो कि करतारपुर की दूरी किन्नी की है, थोड़ी दूरी है। जदों गए ना कोल जाके कहन लगे, इत्थे नानक दरवेश रहिंदा है, मैं उहदे दर्शन करने हैं। जदों बंदे दे अंदर तांग होवे ना, मैं कहना हुन्ना संगत जी साडे अंदर ये तांग पैदा होनी चाहिए है। साडे अंदर ये तांग होवे कि जदों रात नूं सौण लगिए ते ये अरदास करके सोईए, सच्चे पातशाह मेरा जिहड़ा अमृत वेला वो गुरु दी गोद विच बतीत होवे, मैं गुरु दे घरों एबसेंट ना होवां, मेरी रोज दी हाजरी बन जाए, मैनूं तंदरुस्ती बख्शे। भाई लैणा जी चले गए। हुण पहला साधन घोड़े ते साधन हुंदे सन, घोड़ियां दी ते जाना, अज वांगू तां नहीं। घोड़े ते सवार होए चले गए। उधर धन गुरु नानक साहब महाराज खेतां दे विच काम करदे पए ने, कुछ बंदे होर काम करदे पे ने, घाह पुट्टदे पे ने। जाके आवाज दित्ती, कहन लगे, बजुर्गो मैं नानक दरवेश दे घर जाना है। हुण तुहानूं पता होना चाहिए है, भाई लैणा जी का जन्म 1504 ईस्वी का है ते गुरु नानक साहब महाराज का 1469 ईस्वी का है। ते जदों उन्हां दी शरण विच जांदे 1532 ईस्वी दे, भाव की 63 साल की उम्र है गुरु नानक साहब महाराज की। कहन लगा, बजुर्गो मैं नानक दे घर जाना है, नानक दरवेश दे घर जाना है। धन गुरु नानक साहब महाराज ने घोड़े की लगाम फड़ी, नाल नाल लैके चलते पे। जदों घर धर्मशाला च पहुंचे, मंजे ते बिठाया, कहन लगा, तुसी बैठो, मैं हुणे ही आया नानक नूं बुला के। अंदर गए। हुण कपड़े तुहानूं पता ही है, जिहड़ा बंदा खेतां च काम करदा है
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਲੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਦੋ ਸੰਗਤ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਪਗੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਭਾਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 1532 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਹੀ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਹੀ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ ਦੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ, ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਲੈਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਡੋਂਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜੋਤ ਹੋਆ ਜੁਗਤ ਛਾਏ ਸ਼ੈ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਇਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਸਨ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ,
कहन लगे अज तक जो तुसी साडे कोल सिक्ख्या ना उही संगतां नूं उपदेश दो। और बाबे नानक ने आप लगातार 5 दिन थले बैठे रहे। गुरु नानक साहब महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस बने। गुरु अंगद साहब महाराज सिंघासन ते बैठते ने, गुरु नानक साहब महाराज 5 दिन थले बैठते रहे। यह है सत्कार, यह है गुरु दा उपदेश मनना। उत्थे ही गुरु प्यार वालिओ सन 1541 दे विच धन गुरु अमरदास पातशाह अपने भतीजे दी घरवाली बीबी अमरो जो गुरु अंगद साहब महाराज दी बेटी है, उन्हां दे कोलों अगमी अलाही बाणी दा वो वचन सुन के एडे प्रभावित हुंदे ने ते गुरु अंगद दे महाराज दी शरण विच आउंदे ने। ते जदों शरण विच आउंदे ने ना, है रिश्ते दे विच कुड़म ने, पहला भी कुड़म बन के कई बार आए, पर अज कुड़म बन के नहीं आए, अज सेवक बन के आए। ते सेवक बन के मत्था टेकिया और मत्था टेकिया उत्थे ही लगातार 12 साल सेवा घालना कीती। इत्थे मैं एक दिन सेवा कर लवां ते बंदा सुनाउण लग जांदा है। दान पुण्य पता जेड़े करदे आ ना, वो पता की करदे आ, 4 बंदियां नूं इकट्ठे करके फोटो पाउंदे आ, पूरी दुनिया दे विच दसदे आ कि असीं आ बंदे दी मदद कीती। पर सतगुरु दी बाणी कह लगी जे दान करना है, दसवंध कढना है, इदां कर किसे नूं पता भी ना लगे, कोई दसवंध तेरा प्रवान होना है। लगातार 12 साल सेवा घालना कीती। उत्थे ही माता खीवी जी जिन्हां नूं एडा मान वडियाई प्राप्त हुई है, जिन्हां ने 5 गुरु साहिबान दे दर्शन कीते ने, उत्थे ही माता खीवी जी ने लंगरां दी सेवा कीती। और भागां वाले गुरसिखो जदों महाराज नूं गुरियाई मिल जाती है, करतारपुर की धरती तो खडूर साहब आ जाते हैं, जिथे सूरत प्रकाश ग्रंथ चूड़ामणि संतोख सिंह चूड़ामणि ने लिखा है, विच करतारपुरे जगराई गुरु अंगद को दी वडियाई। जगत दे मालक गुरु नानक साहब महाराज ने वडियाई दिती। ते जदों आए ना खडूर साहब की धरती ते, माता खीवी जी ने कहा सतगुरु तानू ते गुरियाई मिल गई, मैनू की मिलिया गुरु नानक दे घर दे विचों। भाई लैना जी सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज कह लगे खीवी मैं भी गुरु नानक दे घर दा लांगरी हाँ ते तू भी गुरु नानक दे घर दी लांगरी। कह लगी वो किवें? कह लगे मैं शब्द दा लंगर वंडदा वां, तू संगतां नूं प्रसादे दा लंगर छकाउणी है। जो वडियाई मैनू मिली है ना बाबे नानक दे घर दे विचों, ओ वडियाई तैनू भी मिलेगी। और भागां वाले गुरसिखो बाबा सत्ता बलवंड जी ने उन्हां दा बाणी दे विच जिक्र कीता। बलवंड खीवी नेक जन, उन्होंने बाणी दे विच उन्हां दा जिक्र किया, लंगर दौलत वंडी है। उन्होंने माता खीवी जी का जिक्र किया और माता खीवी जी नूं इन्ना मान वडियाई प्राप्त हुई। होर कोई ऐसी बीबी नहीं है जिहदा गुरबाणी दे विच नाम आवे, कल्ला माता खीवी जी है जिन्हां दा नाम गुरबाणी दे विच आया। उन्होंने 5 गुरु साहिबान दे दर्शन कीते, उन्हां दी सेवा कीती। और गुरु अमरदास महाराज माता खीवी जी तो 28 साल वड्डे ने, पर माता खीवी जी नूं माता कह के बुलाउंदे ने। ये सत्कार है। अज संसार दे विच किसे नूं माता जी कह दो, वो अगों झगड़ा ही पा के बैठ नहीं। ये सत्कार प्यारिओ साडे भी इत्थे बड़ियां आप जी दे इस स्थान दे विच सत्कारयोग बीबियां ने जिहड़ियां बहुत तन मन धन दे नाल सेवा करदियां ने। गुरु किरपा करे सतगुरु महाराज दे दर ते सानू इदां ही सेवा मिलती रवे, क्योंकि सेवा भी भागा दे नाल मिलती है। जो मान वडियाई माता खीवी जी नूं मिलिया, उही मान वडियाई सतगुरु साडियां इन्हां भैणां नूं मातावां नूं इन्हां बीबियां नूं भी मिले, तंदुरुस्ती दी दात बख्शे। और भागां वाले गुरसिखो सन 1552 ईस्वी दे विच धन गुरु अंगद साहब महाराज ज्योति जो समा गए। अज दे दिन उन्होंने गुरु अमरदास महाराज जी नूं गुरियाई बख्शी। अज जिहड़ा मैं सवैया आप जी दे नाल सरवण कीता सी, भट्टा ने लिखिया, कह लगे अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल,
जिन्ने भी साडी जिंदगी दे विच पाप ने वो धन गुरु अंगद साहब महाराज खत्म कर देंदे ने। अमै दृश्य शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सबे बल, सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै, गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै, सो कहो। इत्थे ध्यान नाल देख लो, स्क्रीन ते शब्द आउंदा है, इत्थे संगतां हमेशा अटल शब्द पढ़ दिंदियां। ध्यान नाल देखो, सो कहो टल, अटल नहीं टल है कला। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कह, जन्म मरण दुख जाए। कह लगे जेड़ा गुरु अंगद देव महाराज जी दे दर्शन परसदा है ओदी जिंदगी दे विचों सारे जन्म मरण दे दुख कट्टे जांदे ने। सतगुरु किरपा करन, भुलां चुकां दी खिमा। एक बेनती करांगा कि आप सारियां संगतां रोजाना हाजरी भरिया करो और गुरु दे शब्द दे दर्शन करया करो। भुलां चुकां दी खिमा। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल